Good morning, friends. Today we are starting with a new topic called as income from salary. The most important and very important topic from your examination point of view. So now, starting with this topic, income. Question arises, when income will be recorded under the head income from salary. So, an income will be recorded under the head income from salary only if there is a relation of employer and employee. There is a relation of master and servant. It means the person who is making payment is an employer and the person who is receiving the payment is an employee. There should be a relation of employer and employee. It means किस नाम से इनकम डिराइव हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है, जो पर्सन पे कर रहा है और जो पर्सन रिसीव कर रहा है उनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, तो ही इनकम सैलरी हेड में रिकॉर्ड किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एनी सैलरी रिसीव्ड टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, member of legislative assembly, member of legislative council, salary received to them will not be recorded under the head income from salary because there is no relation of employer and employee. In that case, member of parliament, member of legislative assembly, member of legislative council, they are part of government. They themselves are government. They are working with government for the benefit, for the we can say for the benefit of India they are working, and for that they are getting salary. So there is no employer in that case. Hence that income received to the member of parliament and member of legislative assembly and member of legislative council will be recorded under income from other sources. Another example, salary received to a partner from partnership firm. Salary received by partner from partnership firm. So salary word आया but मिला किससे? पार्टनरशिप फर्म से, जहां पर पार्टनर कौन है? पार्टनर कौन है? ओनर है. ओनर मतलब वहां पर उसका कोई बॉस नहीं है. It means there is no relation of employer and employee, and since there is no relation of employer and employee, that salary received to a partner from his partnership firm will not recorded under income from salary. That will be recorded under income from business because he has generated income from his own business. Now another example, say for example, I am working in Navkar Institute. So Navkar Institute is my employer. Any income derived from Navkar Institute, for me it is income which is recorded under income from salary. फिर वो इनकम मुझे सैलरी नाम से डिराइव हो या किसी और नाम से डिराइव हो. फॉर एग्जाम्पल, इन नवकार इंस्टीट्यूट my work is to take lectures. I am getting salary for taking lectures. So that is my income from salary. But say for example, during this year, मैंने नवकार इंस्टीट्यूट का पेपर सेट कर दिया या पेपर चेक कर दिया. उस पेपर सेटिंग का, पेपर चेकिंग का मुझे नवकार इंस्टीट्यूट से कुछ पेमेंट मिल रहा है. Then for me that income will also be recorded under the head salary because there is a relation of employer and employee. But say for example, अगर मैंने किसी CA इंस्टीट्यूट का पेपर सेट कर दिया या मैंने यूनिवर्सिटी का पेपर सेट करके चेकिंग किया और उसके लिए मुझे CA इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से पेपर सेटिंग और पेपर चेकिंग का फीस मिल रहा है, then in that case for me that income will not be recorded under the head salary. That income will be recorded under the head income from other sources because I am not an employee of institute, I am not an employee of university, I am an employee of Navkar Institute. So any amount received to me from the Navkar Institute will be recorded under income from salary irrespective whether it is generated in the name of salary or it is generated in any other name.
देयर शुड बी अ रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। उस रिलेशनशिप से इनकम आया ना तो वो इनकम सैलरी में रिकॉर्ड होगा। हमने 3 एग्जांपल किए, उससे आपको क्लैरिटी आ गया होगा। पहला एग्जांपल मैंने दिया, सैलरी रिसीव टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दैट सैलरी रिसीव टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट रिकॉर्डेड अंडर सैलरी। व्हाई? Because there is no relation of employer and employee. So that is recorded under which head? That will be recorded under income from other sources. Another example, salary received to a partner from partnership firm. So since salary received to a partner from his own partnership firm where he is not an employee, he is a owner, that income will not be recorded under salary. That income will be recorded under business and profession. अनदर एग्जाम्पल, मैंने नौकार इंस्टीट्यूट में पेपर सेटिंग पेपर चेकिंग का काम किया, उसके लिए मुझे फीस मिला। So since Navkar Institute is my employer, that income will be recorded under income from salary, but any paper setting or paper checking of university or institute will be recorded under their income from other sources. So hope आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि कोई भी इनकम हम सैलरी हेड में कब रिकॉर्ड करेंगे। तो सिंपल लॉजिक याद रखना है, एन इनकम विल बी रिकॉर्डेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी ओनली इफ देयर इज अ रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मास्टर एंड सर्वेंट। इज इट क्लियर? सो नाउ एन इनकम शुड बी रिकॉर्डेड अंडर दिस हेड if there is a relation of employer and employee. So there are various income which is derived by the employee from his employer. अलग अलग नाम से इनकम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक सैलरी, अलावेंसेस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, एरियर्स ऑफ सैलरी, advance salary, bonus, and last, perquisites. These are list of income which is derived by the employee from his employer. Now these incomes either exempt or taxable. ये जितने भी इनकम हमें एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं इसमें से कुछ इनकम एग्जेम्प्ट होंगे, कुछ इनकम टैक्सेबल होंगे, जिसका हम डिटेल में नोट पढ़ने वाले हैं। नोट 1, नोट 2, नोट 3, ऐसे टोटल हम 10 नोट पढ़ने वाले हैं। इन सारे नोट में मैं आपको सिखाऊंगा whether these incomes are exempt or these incomes are taxable. If they are taxable, तो अमाउंट कॉलम में जो भी अमाउंट है वो लिख देंगे, सारे इनकम का टोटल। इट विल गिव यू ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस इनकम फ्रॉम द हेड सैलरी। Then there will be a deduction given by government under section 16. Generally, deduction is given for expenses if the expenses are incurred as per government guidelines. So here, deduction can be claimed under section 16. There are 3 deduction. Pehla, 16(1)(a), that is standard deduction. Amendment. Amendment is the deduction is given maximum rupees 50,000 irrespective whether the amount is spent or not spent by you. Deduction will be given maximum rupees 50,000. Here maximum rupees 50 means आपका ग्रॉस सैलरी अगर 40,000 है तो आपको डिडक्शन भी 40,000 मिलेगा, लेकिन अगर आपकी ग्रॉस सैलरी है लाख रुपए तो डिडक्शन 50,000 रुपए ही मिलेगा। द मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट इज रुपीज 50,000। आपकी इनकम अगर 60,000 है तो डिडक्शन 50,000 मिलेगा, लेकिन अगर आपकी इनकम ही 45,000 है तो डिडक्शन भी 45,000 का ही मिलेगा। So standard deduction under section 16(1)(a). Next, 16(2), that is for entertainment allowance. That is for entertainment allowance. And 16(3), that is for profession tax. From your income, from your gross salary, ये तीनों deductions minus हो जाएंगे। Deductions minus करने के बाद जो final answer आएगा, that is your taxable income from salary. So to compute income under the head salary, we have to prepare this statement which is called as statement of income from salary. उसमें पहले सारे इनकम्स रिकॉर्ड करेंगे, वो जितने भी इनकम टैक्सेबल है उसका अमाउंट कॉलम में पोस्टिंग करेंगे, सारे टैक्सेबल इनकम का टोटल करेंगे, दैट विल गिव यू ग्रॉस सैलरी। फ्रॉम दैट ग्रॉस सैलरी वी कैन क्लेम डिडक्शन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, 3 डिडक्शन, 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन, 16(2) दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंड 16(3) प्रोफेशन टैक्स. After that, the final answer will be known as taxable income from salary. So now, starting with the first note, that is note number 1, which is for basic salary. Now question arises, what do you mean by basic salary?
So देखो कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लेवल पर काम करे, whether he is working as a peon or he is working as a staff or he is working as a manager or he is working as a chief executive officer or he is working as a director, किसी भी पोस्ट पर किसी भी लेवल पर काम करो, हर महीने एक पगार तो फिक्स्ड आपको मिलेगी ही, एंड दैट सैलरी इज नोन एज बेसिक सैलरी, द बेसिक अमाउंट which is given by employer to his employee on monthly basis. सेल्समैन अगर ज्यादा सेल करेगा तो उसको सेल्स पर कमीशन मिलेगा, बट पगार तो फिक्स होगी, हर महीने एक फिक्स अमाउंट तो मिलेगा ही, दैट इज बेसिक सैलरी. आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो, आपको इंसेंटिव मिल सकता है, आप एक्स्ट्रा काम करो, एक्स्ट्रा आवर्स में काम करो, ओवर टाइम का पैसा मिलेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दिस एक फिक्स अमाउंट तो आपको मिलेगा ही, दैट सैलरी इज नोन एज बेसिक सैलरी. And if it is given in the question, it is fully taxable. It is fully taxable. अब कभी कभी आपके क्वेश्चन में बेसिक सैलरी के बदले नेट बेसिक सैलरी वर्ड दिया होगा. नेट दिया है मतलब कुछ चीजें डिडक्ट करने के बाद दी गई हैं. से फॉर एग्जाम्पल, आई एम अर्निंग 10,000 rupees and 1,000 rupees is deducted towards provident fund. And after deducting 1,000 मुझे 9,000 मिल रहा है. So my income is 10,000, but question में दिया है net basic salary 9,000. So I cannot record my income with net amount. Always I have to record my income with the gross amount. मैं कभी भी मेरा इनकम नेट अमाउंट से रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मुझे ऑलवेज रिकॉर्डिंग ग्रॉस अमाउंट से करनी पड़ती है. तो अगर नेट अमाउंट दिया है 9,000, so what should I will do? I will add that 1,000. So after adding back 1,000, what is my income? It will be 10,000. So my salary is 10,000. So I should record 10,000. That is gross amount. कभी कभी एम्प्लॉयज अपने एम्प्लॉयर से लोन लेते हैं. से फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन लिया है 1,00,000 रुपए का, और एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट किया कि हर महीने की सैलरी में से 5-5 हजार डिडक्ट कर लेना. तो से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की सैलरी 30,000, लोन का इंस्टॉलमेंट डिडक्ट हो गया 5,000, और डिडक्ट होने के बाद एम्प्लॉय को मिला 25,000. सो नेट बेसिक सैलरी इज 25,000, बट ही कैन नॉट रिकॉर्ड इनकम विद द नेट अमाउंट. इनकम शुड बी रिकॉर्डेड विद द ग्रॉस अमाउंट. तो कैसे करेंगे? नेट बेसिक सैलरी 25, इन दैट ऐड लोन इंस्टॉलमेंट 5,000, ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट विल बी 30,000. तो वी शुड रिकॉर्ड 30,000. इन शॉर्ट, कभी भी आपके क्वेश्चन में अगर सिर्फ बेसिक सैलरी दिया है तो आप उसे टैक्सेबल कर दो, लेकिन अगर क्वेश्चन में नेट बेसिक सैलरी दिया है, व्हाट इज गिवन? नेट बेसिक सैलरी, then convert net amount into gross amount by adding all the deductions. जो डिडक्ट हुआ है. सो इफ नेट इज गिवन, देखो मैंने हाईलाइट किया है, इफ नेट इज गिवन देन ऐड. लेकिन अगर नेट वर्ड क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में बेसिक सैलरी वर्ड दिया है, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है. व्हेन टू ऐड? व्हेन नेट इज गिवन. सो व्हेन नेट बेसिक सैलरी इज गिवन, ऐड व्हाट? डिडक्शंस. कौन कौन से डिडक्शन? प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशन टैक्स, लोन इंस्टॉलमेंट एटसेट्रा. ऐसे और भी अगर कुछ डिडक्ट हुआ है, इन शॉर्ट आपके सैलरी में से कुछ माइनस हुआ है ना, तो ऐड बैक दैट, और ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज योर ग्रॉस बेसिक सैलरी, एंड दैट ग्रॉस अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड हियर. इज इट क्लियर? सो बेसिक सैलरी, that is taxable, but if net is given, you have to convert that net amount into gross amount by using this particular formula. So going ahead, next, note number 2, that is for allowances. Now question arises, what do you mean by allowances? So देखो, मेरी सैलरी से फॉर एग्जाम्पल फिक्स है, आई एम गेटिंग 50,000 पर मंथ सैलरी, बेसिक सैलरी, बट मैं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर ट्रेवल कर सकूं, तो दैट ट्रेवलिंग एक्सपेंस इज माय एक्सपेंस. बट वो मैं एक्सपेंस कर सकूं, इसके लिए मुझे नौकार इंस्टीट्यूट से अलग से 2,000 रुपए मिल रहे हैं फॉर ट्रेवलिंग पर्पज. तो पगार तो मिल रही है 50,000, दैट इज माय बेसिक सैलरी, बट फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस मुझे नौकार इंस्टीट्यूट से 2,000 रुपीज और मिल रहा है. सो दैट 2,000 फॉर मी इज अलावेंसेस. Allowances
given to the employee for the expenses. Another example, say for example, मैं भाड़े के घर में रहता हूँ और मैं हर महीने रेंट पे कर रहा हूँ. For me that rent is an expense. For me that rent is an expense. मैं ये expense कर सकूं इसके लिए मुझे नौकार इंस्टीट्यूट से अलग से पैसा मिल रहा है, हाउस रेंट अलावेंस 5,000 रुपीज. पगार नहीं मिल रही है 50,000 बेसिक सैलरी तो मिल रही है, प्लस ट्रेवलिंग के लिए अलग से 2,000 मिला, प्लस रेंट पे करने के लिए अलग से 5,000 मिला. इट मींस मेरे खर्चों के लिए मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जा रहा है फ्रॉम माय एम्प्लॉयर, दैट इज फ्रॉम नौकार इंस्टीट्यूट. देन फॉर मी इट इज अलावेंसेस. So allowances are fixed amount received on monthly basis for the expenses. Allowances क्या होता है? Fixed amount होता है. मतलब एक बार एम्प्लॉयर ने डिसाइड किया कि हर महीने 5,000 देगा हाउस रेंट अलावेंस, तो फिर हर महीने 5,000 मिलता रहेगा अलॉन्ग विद सैलरी. ट्रेवलिंग के लिए 2,000 मिलेगा तो हर महीने ट्रेवलिंग के लिए 2,000 मिलता रहेगा. It is given for expenses but fixed amount given on monthly basis. Is it clear? So बेसिक सैलरी तो मिल ही रहा है, अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी मुझे अलावेंसेस के लिए, खर्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है. अब क्वेश्चन अराइज, क्या ये अलावेंसेस एग्जेम्प्ट है या ये अलावेंसेस टैक्सेबल है? तो देखो अलावेंसेस की अगर हम बात करें तो कुछ अलावेंसेस गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करती है और कुछ अलावेंसेस को गवर्नमेंट टैक्सेबल करती है. सर्टेन अलावेंसेस आर एग्जेम्प्ट, सर्टेन अलावेंसेस आर टैक्सेबल. क्वेश्चन अराइज, कौन से अलावेंस एग्जेम्प्ट है, कौन से अलावेंस टैक्सेबल है? तो दीज अलावेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अलावेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. पहला पार्ट, कट टीसी उधर एचआरए. कट टीसी उधर एचआरए. कट टीसी उधर एचआरए is a list of allowances which are exempt. Cut, TC उधर and HRA are list of allowances which are exempt. They are exempt under section 1014 and 1013A. HRA is exempt under section 1013A. HRA is exempt under section 1013A. Cut and TC उधर is exempt under section 1014. Next, entertainment allowance. ओके, वापस आ जाता हूं. कट टीसी उधर एचआरए ये लिस्ट ऑफ अलावेंसेस है, इसका फुल फॉर्म में अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो, कट टीसी उधर एचआरए दे आर अलावेंसेस व्हिच आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1014 एंड 1013A. नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलावेंस. एंटरटेनमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय एंटरटेनमेंट? सो एंटरटेनमेंट allowance is given to the employee for their entertainment. इन टैक्स इसका कुछ अलग ही ट्रीटमेंट है. दिस इज एन इनकम बट इसको डायरेक्टली एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल नहीं करना है, इसका कुछ अलग ही ट्रीटमेंट है. तो इसको हम नाम देंगे स्पेशल ट्रीटमेंट. स्पेशल ट्रीटमेंट. अब इसके अलावा कोई भी अलावेंसेस एग्जाम में आ जाए ना तो दे आर फुल्ली टैक्सेबल. ऑल रिमेनिंग अलावेंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल. ऑल रिमेनिंग मतलब other than cut, TC उधर HRA and entertainment allowance. All remaining allowances are fully taxable. Now, cut TC उधर HRA में कुछ ऐसे allowances हैं जो exempt है, उनका डिटेल अभी मैं बताने जा रहा हूँ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी allowances हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आर्मी एयरफोर्स के लोगों को, जो एग्जाम किए गए हैं. बट जनरली उस पर इंटरमीडिएट लेवल पर क्वेश्चन आता नहीं है. स्पेसिफिकली वो आर्मी बेस्ड, आर्मी से जुड़े हुए लोगों को एग्जेम्पशन दिया है. तो हम जनरली वो पॉइंट इसलिए नहीं पढ़ रहे बिकॉज एग्जाम में उस पर क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो अननेसेसरली उसका बर्डन क्यों ले. तो हम सिलेक्टेड अलावेंसेस पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में रेगुलरली बेसिस पर पूछे जाते हैं और जो एग्जेम्प्ट है. आर्मी से जुड़े हुए जो भी अलावेंसेस हैं हम वो नहीं पढ़ रहे. बस हाँ, उनको भी एग्जेम्पशन दिया गया है, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, हम इस पर फोकस करेंगे. सो कट टीसी उधर एचआरए एग्जेम्प्ट, एंटरटेनमेंट अलावेंस स्पेशल ट्रीटमेंट एंड रिमेनिंग अलावेंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल. सो अभी आगे बढ़ते हैं, कट टीसी उधर एचआरए डिटेल में पढ़ते हैं. यस, सो नाउ फुल फॉर्म ऑफ कट एंड टीसी उधर. कट C1 that is for commutation allowance. Commutation allowance means
an allowance given to the employee for performing journey between resident to office, office to resident. घर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर ट्रेवलिंग के लिए जो पैसा मिलता है, such allowance is known as commutation allowance, which is also known as transport allowance, which is also known as transport allowance. Now, this transport allowance is exempt only for handicap assessee. If assessee is handicap assessee, exemption will be given maximum rupees 3,200 per month. But if assessee is not handicapped, he is other assessee, then amount of exemption will be nil. It means it is fully taxable. सो क्वेश्चन पढ़कर पहले पता करना, एम्प्लॉय जिसे कम्यूटेशन अलाउंस मिला है वो हैंडीकैप है या अदर है. हैंडीकैप है तो एग्जेम्पशन क्लेम करना, अदर है तो टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल. नेक्स्ट C2 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इट इज एग्जेम्प्ट. The allowance is given for the education of children, exempt, maximum ₹100 per month per child for maximum 2 child. Children education allowance is exempt, maximum ₹100 per month per child. एक बच्चे का एक महीने का मैक्सिमम लिमिट है 100. ऐसे दो बच्चों के लिए एग्जेम्पशन दिया जाएगा. तो अगर एसएससी के 3 बच्चे हैं तो 2 बच्चों का एग्जेम्पशन क्लेम करना. थर्ड चाइल्ड के लिए अगर कुछ पैसा मिला है तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. अमाउंट में भी लिमिटेशन है, पर चाइल्ड मैक्सिमम ₹100. सो इफ रिसीव्ड 120, एग्जेम्पशन विल बी गिवन ओनली ₹100. नेक्स्ट, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस. Children hostel allowance means allowance is given for the hostel expenditure, and this is also exempt, maximum ₹300 per month per child, maximum 2 child. Children education allowance is exempt, maximum ₹100, whereas hostel allowance is exempt, maximum ₹300. But if both the allowances are given to the employee, that is education and hostel allowance, then exemption will be ₹400 per month per child, but for maximum 2 child. Only education allowance ₹100, only hostel allowance 300. Both allowance given, so 100 plus 300 total maximum 400, but for maximum 2 child. Next, underground allowance. This underground allowance is given to the employees for performing work in underground area. The exemption will be given only mines. Generally we can say coal mines and all, जिसमें रिस्क प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देती है मैक्सिमम ₹800 पर मंथ. अंडरग्राउंड अलावेंस exemption will be given only for mines. Next, ट्राइबल एरिया अलावेंसेस. ट्राइबल एरिया मतलब आदिवासियों का एरिया. आदिवासियों के एरिया में जाकर काम करना लोग जनरली प्रिफर नहीं करते. तो एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा है कि आप हमारे ट्राइबल एरिया के एक ब्रांच है वहां पर जाकर काम करो, हम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे. सो टू प्रमोट एम्प्लॉयज टू वर्क इन अ ट्राइबल एरिया, कंपनी उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करती है. सच अलावेंस इज नोन एज ट्राइबल एरिया अलावेंस. इट इज एग्जेम्प्ट, मैक्सिमम ₹200 पर मंथ. So tribal area allowance is exempt, maximum ₹200 per month. Next, allowances to the employees of transport undertaking. Allowances are given to the employees of transport undertaking, means those employees who are working in transport companies, transport undertaking. We are talking about all those companies who are operating in trucks, in buses, in we can say railways employees. तो ऐसे एम्प्लॉय को जो अलावेंसेज मिल रहा है, हम उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज की बात करें, स्पेसिफिकली ओनली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज. उन्हें जो अलावेंसेज मिलता है गवर्नमेंट उनको स्पेसिफिक डिडक्शन देती है, दैट इज 70% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड कंपेयर्ड विथ ₹10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस. जितना भी अमाउंट मिला है उनको
अलावेंस उसका 70% कंपेयर करेंगे 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्टेड. मीन्स फॉर एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज को, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय को 15,000 रुपए अलावेंस का मिला है. सो गवर्नमेंट क्या कहती है, पहले 15,000 का 70% निकालो. तो 15,000 का 70% इज 10,500. दिस शुड बी कंपेयर्ड विथ 10,000, whichever is less. So lower amount is 10,000. So out of 15,000, 10,000 is exempt. Balance 5,000 will be taxable. Another example. Say for example, allowance is received 12,000. So पहले क्या करेंगे, इस 12,000 का 70% कैलकुलेट करेंगे, which is 8,400. This 8,400 should be compared with rupees 10,000. Whichever is less. So the lower amount is 8,400. So out of 12,000, 8,400 is exempt. 3,600 will be taxable. It means जितना भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ है पहले उसका 70% निकालो और उसको 10,000 से कंपेयर करो. जो लोअर अमाउंट होगा उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा. सो इन केस ऑफ कट आपको ये अमाउंट जो दिए गए हैं ये स्टैंडर्ड अमाउंट है, ये याद रखने पड़ेंगे. In case of cut, if any amount spent is given, it should be ignored. Amount spent should be ignored. It means, say for example, children education allowance received 500 and spent entire 500 for education of children. Receive कितना हुआ 500, spend कितना हुआ 500. अब question arise, exempt कितना होगा? तो exempt will be maximum 100. Received 500, spend nothing. बच्चे को पढ़ाया ही नहीं एम्प्लॉय ने, रिसीव्ड हुआ 500, स्पेंड नथिंग, एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? सो यस, एग्जेम्पशन मिलेगा. कितना? मैक्सिमम रुपीज 100. इट मीन्स वेदर द एक्चुअली अमाउंट इज स्पेंट और नॉट स्पेंट, एग्जेम्पशन विल बी गिवन मैक्सिमम रुपीज 100 पर मंथ पर चाइल्ड. तो ये जितने भी कट के अमाउंट है ये आपको याद रखने हैं. क्वेश्चन में अगर अमाउंट स्पेंड दिया होगा, अमाउंट स्पेंड दिया होगा, अमाउंट स्पेंड दिया होगा तो आप उसे इग्नोर कर देना. Amount spent should be ignored. But in case of TC udhar, amount spent is equal to amount exempt. अब जो मैं allowances पढ़ाने जा रहा हूं, that is TC udhar. Here exemption will be given based on amount spent. More amount spent, more exemption will be given. Less amount spent, less exemption is given. Nothing is spent, no exemption will be given. So here exemption is based on amount spent. Whereas in case of cut, fixed amount of exemption will be given. So TC उधर में T for traveling on tour allowance. Traveling on tour allowance मतलब आप कंपनी के काम से कहीं पर टूर पर जा रहे हो और वहां पर जाने और आने के ट्रेवलिंग के लिए कंपनी ने पैसा दिया. So if received 10,000 and entire 10,000 is spent, so nothing will be taxable. Received 10,000, you have spent only 4,000 on traveling. So out of 10,000, 4,000 will be exempted, 6,000 will be taxable. Here amount spent is equal to amount exempt. Next, C for conveyance allowance. This conveyance allowance given is to the employee for local traveling. मतलब अब ट्रेवलिंग के नाम पर 3 अलावेंसेस है. पहला commutation allowance. This allowance is given for performing journey between resident to office, office to resident. घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए मिल रहा है. Traveling on tour allowance is given for traveling on tour. टूर पर कहीं पर कंपनी के काम से बाहर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं मतलब आइदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कहीं पर भी आप बाहर क्लाइंट से, कस्टमर से मिलने जा रहे हैं, कुछ बिजनेस काम के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर जाने आने का जो भी खर्चा होगा उसे ट्रेवलिंग ऑन टूर अलावेंस कहते हैं. और सेल्समैन लोकल एरिया में गुड्स बेचने के लिए ट्रेवल करते हैं, उनको कन्वेंस अलावेंस मिलता है. इट इज एग्जेम्प्ट अप टू अमाउंट स्पेंड. नेक्स्ट, यूनिफॉर्म अलावेंस. इट इज गिवन टू द एम्प्लॉय फॉर मेंटेनिंग द यूनिफॉर्म. Maintaining the uniform, it is exempt up to amount spent. Next, daily allowance. ऐसे एम्प्लॉइज जिनको कंपनी टूर पर भेजती है, तो जाने और आने के ट्रेवलिंग का खर्चा तो कंपनी देती है, वहां पर स्टे करने का,
वहां पर जितने दिन रुकना पड़ेगा उतने दिन खाने पीने का, वहां पर डे टू डे जो भी खर्चा होगा उसके लिए कंपनी एक्स्ट्रा पेमेंट करती है. सच अलावेंस इज नोन एज डेली अलावेंस. एंड हियर ऑल्सो अमाउंट स्पेंड इज इक्वल टू अमाउंट एग्जेम्प्ट. नेक्स्ट, हेल्पर अलावेंस. हेल्पर अलावेंस मतलब ऐसे एम्प्लॉइज जो आपके अंडर आपको हेल्प करने के लिए रखे गए, और एम्प्लॉइज के अंडर अगर वी कैन से फॉर एग्जांपल डायरेक्टर के अंडर किसी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया, तो डायरेक्टर का सेक्रेटरी स्पेसिफिकली सिर्फ डायरेक्टर की हेल्प करेगा कंपनी का काम कंप्लीट करने के लिए. So here amount spent is equal to amount exempt. And same way, research allowance, it is given for research purpose. So amount spent is equal to amount exempt. In case of TC Udar, amount spent is equal to amount exempt because these are official expenses and cut is a personal expenses. So in case of personal expense, अगर amount spent दिया है तो आप उसे ignore कर दो. But in case of TC Udar, amount spent is equal to amount exempt. इनफैक्ट कभी ऐसा भी होगा कि टीसी उधर में अमाउंट स्पेंड दिया ही नहीं है, टीसी उधर में अमाउंट स्पेंड दिया ही नहीं है. सो इफ अमाउंट स्पेंड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इफ अमाउंट स्पेंड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन अज्यूम एंटायर अमाउंट इज स्पेंड फॉर टीसी उधर. एंड सिंस एंटायर अमाउंट इज स्पेंड, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. सो कट, यहां पर आपको ये अमाउंट याद रखना है. और इन केस ऑफ टीसी उधर, amount spent is equal to amount exempt. So we have completed cut and TC Udar. Starting with next allowance, that is house rent allowance. House rent allowance question arise, मतलब क्या है? तो house rent allowance मतलब allowance is given to the employee for payment of rent. अब question arise, say for example there are two types of employee. एक ऐसा एम्प्लॉय है जो रेंटेड प्रीमाइसेस में रहता है, और एक ऐसा एम्प्लॉय है जो खुद के घर में रह रहा है, जिसका खुद का घर है. सो क्वेश्चन इज, कंपनी हाउस रेंट अलावेंस कौन से एम्प्लॉय को देनी चाहिए? ऐसे एम्प्लॉय जो खुद के घर में रह रहे हैं उनको हाउस रेंट अलावेंस मिलना चाहिए, या ऐसे एम्प्लॉयज जो भाड़े के घर में रहते हैं? यस, कौन से एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलावेंस मिलना चाहिए? ऐसे एम्प्लॉय जिनका खुद का घर है, या ऐसे एम्प्लॉय जो रेंटेड प्रीमाइसेस में रहते हैं? यस, सो हाउस रेंट अलावेंस सबको मिलता है. मतलब अगर कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी हाउस रेंट अलावेंस देगी तो सारे एम्प्लॉयज को देगी, और अगर कंपनी की पॉलिसी की कंपनी हाउस रेंट अलावेंस नहीं देगी तो किसी भी एम्प्लॉय को नहीं देगी. ये कंपनी की स्टैंडर्ड पॉलिसीज होती है कि हाउस रेंट अलावेंस देना है या नहीं देना है. देना है तो सबको देना है, और नहीं देना है तो किसी को भी नहीं देना है. अब गवर्नमेंट क्या कहती है, हम ये अलावेंसेस एग्जेम्प्ट उन्हीं को करेंगे जो एक्चुअली रेंट पे कर रहे हैं. बिकॉज ऐसे एम्प्लॉय जो हाउस रेंट अलावेंस रिसीव कर रहे हैं, दे आर रिसीविंग हाउस रेंट अलावेंस बट दे आर नॉट पेइंग द रेंट. एंड सिंस दे आर नॉट पेइंग द रेंट, फॉर देम देयर इज नो एक्सपेंस. So deduction will not be given. Deduction will be given only to those employee who are paying the rent. Deduction will be given only to those employee who are actually paying the rent. Because exemption will be given only to those employee who are paying the rent. ऐसे employee जो रेंट भर ही नहीं रहे हैं, उनके लिए तो कुछ खर्चा ही नहीं है, और जब खर्चा ही नहीं है तो exemption क्यों दे? उनको तो प्योर HRA मिला, इनकम टैक्सेबल. So house rent allowance, it is exempt under section 1013A only if rent is paid by employee. Only if rent is paid by employee. अब क्वेश्चन है कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन के लिए एग्जांपल समझो. से फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, तो क्वेश्चन अराइज, क्या आप पूरा 10,000 रेंट पर खर्च करोगे? डेफिनेटली नॉट. आप अपनी इनकम का कुछ पोर्शन रेंट पर खर्च करेंगे. मतलब अगर कोई 10,000 कमा रहा है तो शायद वो 2-3 हजार रेंट पर खर्च करता होगा. लेकिन अगर यही पर्सन 50,000 कमाने लगे तब वो 2-3 हजार रेंट पर नहीं खर्च करेगा, थोड़ा ज्यादा अमाउंट रेंट पर खर्च करेगा. मतलब जैसे जैसे हमारा इनकम का लेवल बढ़ता जाता है, हम हमारा रेंट पे करने का कैपेसिटी भी बढ़ाते हैं. मोर इनकम आई विल पे मोर रेंट, लेस इनकम आई विल पे लेस रेंट, बिकॉज जनरली हम एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करते हैं. तो गवर्नमेंट यहां पर एग्जेम्पशन भी उसी बेसिस पर दे रही है.
गवर्नमेंट कह रही है आप अपनी इनकम का ज्यादा से ज्यादा 50% ही रेंट पर खर्च करेंगे। मतलब अगर आप 10,000 कमाते हो तो ज्यादा से ज्यादा 5,000 रेंट पर खर्च करोगे। आप अगर 50,000 कमा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 25,000 रेंट पर खर्च करोगे। इससे ज्यादा आप खर्च करोगे ही नहीं रेंट पर। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। शायद आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाए जो अपनी इनकम के 50% से ज्यादा रेंट पर खर्च कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी इनकम का 50% से उससे भी इनफैक्ट कम रेंट पर खर्च करती है। बट गवर्नमेंट सिंस एग्जेम्पशन दे रही है तो थोड़ा हायर साइड एग्जेम्पशन दे रही है। Exemption will be given 50% of salary, and this 50% will be taken if the rent is paid either in Mumbai, Delhi, Chennai and Kolkata. If the rent is paid in Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata. But if rent is paid in other cities, other locality, then exemption will be given only 40% of salary. So here amount of exemption will be either 50% or 40% of salary. 50 और 40% ऑफ सैलरी। सो क्वेश्चन अराइज, सैलरी का मतलब क्या? सैलरी में कौन कौन सी इनकम को कंसीडर करना है? सो हियर सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, in that add dearness allowance. Dearness allowance, that is only in terms. In terms means which is a part of salary plus turnover commission. Turnover commission, that is sales commission. While computing salary, for computation of amount of exemption of house rent allowance, salary include basic salary plus dearness allowance. Dearness allowance is one type of allowance given to the employee for inflation. Dearness allowance is one type of allowance given to the employees for inflation. There are two types of dearness allowance. Dearness allowance in terms, that is forming part of salary. Dearness allowance not in term, that is not forming part of salary. While computing exemption of amount of HRA, you have to take only dearness allowance in terms. Not in terms will not be considered here. And add turnover commission. इन तीनों को ऐड करेंगे, उसका जो एग्रीगेट अमाउंट आएगा उसका 50 या 40% लेना है। 50% कब लोगे? अगर हमने रेंट पे किया है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। 40% कब लेंगे? जब हमने रेंट किसी और लोकेलिटी में पे किया। Now this amount to be compared with actual amount received. Actual amount received मतलब आपने HRA कितना रिसीव किया है। Under any circumstances, my amount of exemption cannot exceed my income amount. It means अगर मैं 5,000 कमा रहा हूं तो मेरा amount of exemption 6,000 नहीं हो सकता। Exemption maximum उतना ही मिलेगा जितना मेरा इनकम है। So this 50 or 40% should be compared with actual amount received. And this should be further compared with rent paid minus 10% of salary. Rent paid minus 10% of salary. Now rent paid minus 10% of salary, इसका मतलब क्या? तो गवर्नमेंट का मानना क्या है कि हर एक पर्सन जो रेंट पे कर रहा है वो अपनी इनकम का कम से कम 10% खुद बेयर करे। उससे एक्सेस उसने जो रेंट पे किया होगा हम उस पोर्शन का एग्जेम्पशन देंगे। इट मींस से फॉर एग्जांपल यू आर पेइंग रेंट 3,000, योर अर्निंग, योर सैलरी इज 10,000 रुपीज। सो गवर्नमेंट क्या कह रही है? इनकम का 10%, दैट इज 10,000 का 10% कम्स टू 1,000, इतना आप खुद बेयर करो। आप रेंट अगर 3,000 पे कर रहे हो तो इनकम का 10% 1,000 खुद बेयर करो। सो 3 - 1 कितना एक्सेस आप पे कर रहे हो? 2,000. So we will give exemption only for that 2,000. So here exemption can be claimed 50 or 40% of salary. That should be compared with actual amount received, and that should be compared with rent paid minus 10% of salary, whichever is less.
Now this rule will be followed for those particular month for which salary, rent, place is same. अगर ड्यूरिंग द ईयर आपका इनकम चेंज हो गया, दैट इज सैलरी और डियरनेस अलावेंस और टर्नओवर कमीशन, या आपका प्लेस दैट इज लोकेलिटी चेंज हो गया, या आपने रेंट पे करना जितना पहले पे करते थे उससे ज्यादा या कम पे कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी चीज जो इससे जुड़ी हुई है उसमें से कोई एक भी चीज फ्लक्चुएट हो गई, तो जिस मंथ से वो फ्लक्चुएशन हो गया है उस मंथ से हमें वापस कैलकुलेशन करना पड़ता है. मतलब हमें ईयर में देखना पड़ेगा कौन से ईयर तक, मतलब ईयर में कितने महीने तक ये सारी चीजें कांस्टेंट है. जितने मंथ्स तक कांस्टेंट है उसका कैलकुलेशन अलग करो और उसके बाद का कैलकुलेशन अलग करो. House rent allowance. So we have completed cut, TC udhar and HRA. Cut and TC udhar exempt under section 1014. HRA is exempt under section 1013A. For cut अमाउंट का जो मैंने अमाउंट बताया था वो आपको याद रखना है. टीसी उधर अमाउंट स्पेंट इज इक्वल टू अमाउंट एग्जेम्प्ट, एंड इन केस ऑफ एचआरए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, विच एवर इज लेस. नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलावेंस. हमने एंटरटेनमेंट अलावेंस के बारे में पढ़ा था कि इट इज गिवन फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ एम्प्लॉय. अब इसका हम ट्रीटमेंट पढ़ने जा रहे हैं. तो हमने थियरी में इसके पहले सिर्फ इतना सुना था कि इट इज इसका कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है. वो क्या स्पेशल ट्रीटमेंट है? तो देखो, इन केस ऑफ कट, इन केस ऑफ टीसी उधर, इन केस ऑफ एचआरए, एम्प्लॉय कोई भी हो, whether employee is a government employee or employee is other employee, rules regulation will remain same. But entertainment allowance के लिए पहले पता करना एम्प्लॉय कौन सा एम्प्लॉय है. whether employee is a government employee or employee is a other employee, whether employee is a government employee or employee is a other employee. अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ट्रीटमेंट है फर्स्ट इंक्लूड देन डिडक्ट. फर्स्ट इंक्लूड मतलब पहले स्टेटमेंट में इसे इंक्लूड कर लो. आज हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा था ग्रॉस सैलरी के ऊपर, इसे इंक्लूड कर लो और फिर ग्रॉस सैलरी के बाद नीचे डिडक्शन क्लेम कर लो अंडर सेक्शन 16(2). But if employee is other employee, if employee is a other employee, it should be only included in the statement. No deduction will be given under section 16(2). The deduction benefit is given only to the government employee. The rules and regulation are prepared by government, so government is giving tax benefit to their employees, to the government employee. So for them, it should be first included in the statement and then deduction will be given. Question arises, what is the amount of deduction? So here, amount of deduction will be 1/5 of basic salary. जितना बेसिक सैलरी है उसका पहले हम 1/5 निकालेंगे. आपने जब हाउस रेंट अलावेंस यहां पर पढ़ा था तो मैंने लिखा है 50-40% ऑफ सैलरी. सो व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी? तो सैलरी इंक्लूड बेसिक प्लस डियरनेस अलावेंस इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन. बट इन केस ऑफ एंटरटेनमेंट अलावेंस 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, ओनली बेसिक सैलरी. दैट शुड बी कंपेयर्ड विथ एक्चुअल अमाउंट रिसीव. And that should be compared with maximum rupees 5,000. 1/5 of basic salary compared with actual amount received compared with rupees 5,000, whichever is less, the lowest amount will be given as a deduction. So say for example, अगर employee को entertainment allowance 500 per month मिला है and he is a government employee, तो 500 per month into 12, 6,000 will be included. But while claiming deduction after gross salary, while claiming deduction will be given for maximum 5,000. So indirectly we can say for him taxable will be only 1,000. But if employee is a other employee, only include, मतलब पूरा 6,000 include तो कर लो but नीचे deduction नहीं मिलेगा. और अगर उसे deduction नहीं मिलेगा, it means entire 6,000 will be taxable to him. So entertainment allowance. So we have completed cut, TC udhar, HRA as well as entertainment allowance. Apart from that, any allowance is given in the question that will be taxable. For example, telephone allowance, it is given for telephone expenditure, it is taxable. Lunch allowance, it is given for lunch purpose, it is taxable. Medical allowance, it is given for medical purpose, it is taxable. City compensatory allowance. City compensatory allowance is one type of allowance given to the employee for compensation of city. Means
ऐसे एम्प्लॉयज जिनका ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी और दूसरे सिटी का इन्फ्लेशन कंपेरेटिवली ज्यादा है, तो उस सिटी में रहने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट एम्प्लॉय को बेयर करना पड़ रहा है, एंड फॉर दैट एम्प्लॉयर इज पेइंग एक्स्ट्रा अमाउंट टू कॉम्पनसेट हिम. सच अलावेंस इज नोन एज सिटी कॉम्पनसेटरी अलावेंस. सो ऐसे जितने भी अलावेंसेज अब आ जाएंगे अदर देन कट, टीसी, उधर एचआरए, एंटरटेनमेंट अलावेंस, they are fully taxable. So we have completed note number 2, that is for allowances. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.